Unacademy. Let's crack it. Good evening to all of you, all those thousands of candidates who are watching this program. Today is a momentous day for all of us because today we have with us Pradeep Kumar Singh, the top ranker in the civil service examination. He is not so-called from the elite background, not the children of these IAS officers or other people. And he also studied from normal colleges, but still he had proved that none of these things are going to be any kind of limitations for you to succeed at the highest level. And congratulations once again, Pradeep, for your success. And I always feel very happy. I take a lot of pride because when people like you are there in services, it really gives us a lot of hope regarding the future of our country. As we can see, as we studied in our ethics paper also, if you want to know the true personality of a person, give him power. And Pradeep has proved again all these things wrong. He has remained the same humble person, down to earth attitude, not having any of the airs that are related to the so-called IAS. Remained very humble person. So Pradeep, I don't want to talk much because all the students are looking forward to listen from you. So I will take up all the questions on behalf of the students, and I would request you to give them guidance regarding their preparation. Right? Thank you, sir. Thank you very much for the warm welcome and the warm introduction that you have given. I think you have said a lot of things that that is very, very flattering and very. I'm very humble to be here and to be associated with you. I'm very proud that I have been associated with you and I've taken guidance from you, sir. And I will be very happy to give any type of guidance that my fellow experienced UPSC aspirants wants from me. I will be very happy to help them in any way. Let me start, Pradeep, with this. You have worked in the Staff Selection Commission, right? You also have worked in IRS Customs. Yes. Then you got into IAS. Yes. You have seen three different kinds of professions. Yes. All of us wanted to know what kind of difference you have seen in all these three things. Sir, for a brief introduction, after my college, when I placed into TCS company, so I've also worked for 1 year in TCS company. So that's really great. Yeah. For that matter, I also have a 1 year experience in corporate field also. And after that, I have worked in for 1 year in Mumbai Customs and then 4 years in Income Tax Department, both through the Staff Selection Commission. So for a start, sir, my experience in all these corporate field and these customs and income tax departments, my experience is that the things are more organized there. So you have a dedicated mandate that this is the mandate that you have to do. These are the works that you have to do. And जैसे कि सर जो कस्टम्स और इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो वहां पे जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. तो जो हायरार्की है और जो वर्क मैंडेट है वो डिफाइंड है. जब आप आईएएस में आते हो, सो द थिंग इज दैट फर्स्ट थिंग इज दैट इट डिपेंड्स अ लॉट इन विच कैडर आर यू वर्किंग, बिकॉज इन एवरी स्टेट देयर इज अ डिफरेंट वर्किंग स्टाइल, देयर इज डिफरेंट कल्चर्स, पीपल आर डिफरेंट, देयर प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट. So in IAS, you have to come to the field. You first have to understand the topography, geography, then the culture, language, and everything of the people there in which cadre you are working. And उसके बाद सर आपको बहुत सारे डायनेमिक चीजें भी आती हैं. जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स और कस्टम्स में चीजें डिफाइंड होती हैं. यू हैव द थिंग्स बिफोर यू कि आपको क्या करना है. बट इन IAS थिंग्स कंटिन्यू टू बी चेंज्ड. वो चलता रहता है सर, क्योंकि चीजें जैसे अब जैसे कोविड आ गया, तो अब की बार जो प्रॉब्लम्स थी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फेस करा, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द कोविड लास्ट ईयर. और उससे 1 साल पहले तो हमारे पास कोविड भी नहीं था. सो प्रॉब्लम्स अलग अलग आती रहती हैं सर, और जो फील्ड में नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उसी के हिसाब से वी हैव टू बी वेरी डायनेमिक. उनका सॉल्यूशन उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ता है और करना पड़ता है. सो मुझे लगता है शायद वो एक मेन डिफरेंस है जो कि आपको जो मैंडेट में एक डिफरेंस है.
सेकेंडली सर जो पावर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, क्योंकि बिकॉज इनकम टैक्स में व्हेन यू वर्क तो आपकी पावर्स, देयर इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसी तरीके से कस्टम्स एक्ट हमारे पास है। सो मोस्ट ऑफ योर पावर्स यू डिराइव योर पावर्स फ्रॉम दोज एक्ट्स। लेकिन जब आप आईएएस में आते हो सर, सो इट्स नॉट वन डेडिकेटेड एक्ट जहां से आप पावर डिराइव करते हो। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, सो मेनी एक्ट्स, जहाँ पे डीएम के पास, एसडीएम के पास या डीसी के पास बहुत सारी जो पावर्स होती हैं वो वहां से अपनी पावर्स यूज करते हैं। तो एक बहुत डेडिकेटेड और डिफाइंड चीजें नहीं है, बहुत डायनेमिक सी फील्ड है और एडवेंचरस फील्ड है। तो जैसे जैसे चैलेंजेस आते रहते हैं उसी हिसाब से आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना काम करते रहना पड़ता है सर। So, you have been working there in the field, for the last, I think, how many, 4 months or 5 months in the field? जी So सर। Yeah. Yes sir. Yeah. So what are the major challenges you have seen, in your field in IAS right now? सर इन आईएएस जो मेन चैलेंजेस मैंने देखा फील्ड में आने के बाद, क्योंकि जब हम अपने फेज 1 की ट्रेनिंग कंप्लीट करके अप्रैल में हम अपने कैडर्स में गए और कैडर्स में जाने के बाद हमने अपने डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करा, तो उस टाइम पे सर अप्रैल के सेकेंड वीक में कोविड की सेकेंड वेव आनी स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे जो सर सेकेंड वेव में जो कोविड के केसेस आने स्टार्ट हो गए थे। सो हमारी डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट की सबसे पहली जो असाइनमेंट हमारे को मिली, दैट वाज कोविड मैनेजमेंट, एंड आई वाज आल्सो असाइंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ कोविड मैनेजमेंट, जो कि डीसी सर ने मेरे डिस्ट्रिक्ट में, करनाल डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड वीक में ही पीक होना स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे डेली केसेस 3 टाइम्स बढ़ गए थे जो पहले आ रहे थे। तो उस हिसाब से हमें जो प्रॉब्लम्स फेस हुई वो थी, जैसे कि ऑक्सीजन, जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की भारी कमी थी, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को टाइमली प्रोवाइड करना। सेकेंडली हॉस्पिटल बेड्स वर फुली ऑक्यूपाइड, तो जो हमारे पास नए पेशेंट्स आ रहे थे उनको हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है, उसके लिए हमें नए हॉस्पिटल्स खोलने थे, या फिर इस तरीके से बेड्स को रैशनलाइज करना था कि जो सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है वी प्रोवाइड बेड टू देम। और सर थर्ड था कि हम किस तरीके से सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें, उसके लिए हमने करनाल में एक ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया सर, जिसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डीसी सर ने मुझे ही दी थी। तो आई वाज लुकिंग ओवर द ICCC सेंटर, और कुछ एक्सपीरियंस भी रहे सर, कुछ एक्सपीरियंसेस भी रहे, बढ़िया एक्सपीरियंसेस भी रहे, जो काफी कुछ सीखने को मिला कोविड मैनेजमेंट में डिस्ट्रिक्ट में। अभी हमारी अटैचमेंट चल रही है, पिछले 3 वीक से मेरी अटैचमेंट अर्बन अटैचमेंट में थी, जहाँ पे मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम किया और वहाँ पे जो अलग डिफरेंट चीजें हैं वो चीजें देखी। So it means that you got a huge amount of experience in the last 3 months. Yes sir. Right, diversified. So the next question I would like to ask here is, what about job satisfaction? This is what people wanted to know, because you work in the private sector. Yes sir. In the income tax department, customs, and IAS, which one gives you best job satisfaction? Sir, I think in terms of job satisfaction there is no match of IAS, because IAS में आने के बाद आपको इतना हाई लेवल का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप डायरेक्ट पीपल से डील कर सकते हो, क्योंकि आपका जो जॉब मैंडेट है वही आपको मतलब आपको एम्पावर करता है कि आप लोगों के पास जाइए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए और उनकी प्रॉब्लम को दूर करिए। सो क्योंकि जब हम किसी भी सिविल सर्विसेज में जब हम आने की सोचते हैं या फिर हमारा जो एम बनता है, तो वो मेन मोटिवेशन फैक्टर यही होता है कि जब हम आईएएस में चले जाएंगे देन वी विल बी एबल टू डू समथिंग फॉर द पीपल देयर प्रॉब्लम्स। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक छोटी वो डोर होती है मोटिवेशन के लिए, जहाँ पे हमने वो चीजें फील करी होती हैं, फेस करी होती हैं अपने लाइफ में। हमने अपने पेरेंट्स को देखा होता है या हमने खुद हमारा एक्सपीरियंस रहा होता है किसी चीज को लेके कि गवर्नमेंट में ये चीजें ऐसी हो रही हैं या लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो शायद हम सिस्टम में जाएंगे तो हम ये प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो सर वही चीज जब हम आईएएस में आ जाते हैं तो व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम अदर साइड the same problems from the other side, like you are now in the system, now you have to see those problems and what you can do about those problems। तो वो चीजें सर आपको जब आप उनके लिए काम करते हो तो आपको बहुत जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। चाहे आप उसमें फिर आप ये नहीं देखते कि आपको ओवरवर्क भी काम करना पड़ता है, आप ओवरनाइट भी काम करते हो, लेकिन आपके अंदर एक जो ये सेटिस्फेक्शन रहता है दैट यू आर वर्किंग फॉर द पीपल डायरेक्टली। सो जो बेनिफिट होता है सर वो सामने आपको दिखता है, लोगों को सीधा सीधा बेनिफिट होते हुए दिखता है, तो आपको वो बहुत जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। That's very good. That's really great. So Pradeep, the next question
is what was your feeling when you heard that you have topped this examination? Okay. Sir, when I heard and when I checked my result, actually I got this information from my friend, जिसने मुझे कॉल किया एंड टोल्ड मी कि रिजल्ट आ गया है एंड यू चेक योर रिजल्ट. जब मैंने रिजल्ट देखा और उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर था, सो इट वाज ए टोटली डिफरेंट फीलिंग बिकॉज आई फेल्ट numb for some time because I couldn't believe. First thing, yes sir, first thing, सबसे पहले तो यही था कि सिलेक्शन हो गया, उसकी एक खुशी होती है. बट व्हेन यू टॉप द एग्जाम देन वो आपके अंदर एक कंप्लीटली मिक्स्ड इमोशंस आ जाते हैं सर. आपको पता ही नहीं चलता कि आप खुश हो रहे हो या आपके अंदर वो क्या फीलिंग्स अंदर बनती हैं, क्योंकि आपके सामने पिछला पूरा स्ट्रगल आपके सामने आ जाता है और उसका जो रिजल्ट आपको मिलता है उसके बाद वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है. तो कुछ टाइम के लिए तो सर मैं नम हो गया था कि व्हाट हैज हैपेंड. देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि रिजल्ट आ गया है, आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन एंड माय रैंक इज रैंक 1. तो एक डिफरेंट फीलिंग थी सर, अच्छी फीलिंग थी. और मतलब जो आप मेहनत करते हो तो अच्छा लगता है उसका जब फल आपको मिलता है. In fact, let me tell you what I felt, when I saw your results. Okay. I was just checking the results and I've seen Pradeep Kumar Singh. I remember definitely no, but is it the same person? Yes. Right? Then I checked your application form. Yes. And then immediately asked my office to call, and then all of us felt really happy because one thing I can say, for all the students who are watching this program also, you have all those qualities that I keep on saying in the class that are needed for you to become successful civil servant. That really gives me a lot of happiness, nothing else, to see people like you in services. Because those who have so much of empathy, those who are down to earth, those who are extremely humble, those who are very, very hardworking. Right? That is what I felt. Yes. So let us, proceed further. Right? Let us look at all the questions that were asked by the students. They are very, very, as I said, I got hundreds of questions from the students. Okay. Let us divide that into 3 parts. First one is general studies. Second one is optional. And third one is, in general, other questions related to preparation, psychological and everything else. Right? So let me start with general studies. Right? Yes. Preliminary examination. People would like to know what you have done to clear the preliminary examination. Very simple. Sir, in very simple terms, for prelims examination, my strategy was very simple. I know that the marks of prelims examination is not going to be added in the final rank list. This is very important. Yes. Yes, sir. That is very important because only because of this fact your strategy and your preparation style for the prelims examination changes. तो आपको पता होता है कि आपको इसमें बहुत हाई स्कोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ेंगे. सो द थिंग इज यू नीड टू प्रिपेयर इट कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाओ. दैट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू सी. जबकि मेंस के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं सर, वहां पे योर मार्क्स मैटर. तो आपकी कोशिश होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा उन चीजों में डिवोट करो, अपना टाइम और रिसोर्सेज डिवोट करो, क्योंकि जितना आप ज्यादा डिवोट करोगे उतना ही चांसेस होते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके मार्क्स अच्छे होंगे या इंप्रूव होंगे, जो कि आपके फाइनल रैंक लिस्ट में या फिर सिलेक्शन होने में आपकी हेल्प करेंगे. लेकिन प्रीलिम्स में वो नहीं होता है. तो प्रीलिम्स में यू हैव टू फोकस कि आप बहुत ज्यादा डीप में ना जाके, रादर देन यू फोकस कि आप उतना कर लीजिए ताकि यू जस्ट क्लियर दी कट ऑफ. तो प्रीलिम्स में सर मेन एक जो सिंपल स्ट्रेटजी तो यही थी कि मेरे को इतना करना है. सेकंड, उसके बाद सर कुछ जनरलाइज चीजें हैं प्रीलिम्स के लिए कि फर्स्ट यू फोकस ऑन द सिलेबस, जो कंसेप्चुअल सिलेबस है सर, जो बेसिक सिलेबस हम जिसको बोलते हैं. तो उसमें हिस्ट्री हो गया, हमारे जो डिफरेंट सिलेबस सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देन एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, एंड देन करंट अफेयर्स. तो सर जो बेसिक हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, आप उनका बेसिक, सबसे पहले बेसिक जो हमारी बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जो हम यूपीएससी की तैयारी के लिए बोलते हैं, वो बुक्स आप अच्छे से कर लीजिए, उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सो दैट योर बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज देयर. देन focus on the current affairs because most of the questions in the prelims are asked from the current affairs. और सर करंट अफेयर्स का जो एक स्टाइल है पढ़ने का या फिर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने का, दैट इज डिफरेंट इन प्रीलिम्स फ्रॉम क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन मेंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स पार्ट. तो करंट अफेयर्स दोनों के लिए, प्रीलिम्स के लिए एक डिफरेंट होता है और मेंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो फॉर प्रीलिम्स यू नीड टू फोकस ऑन द फैक्ट्स फॉर इंफॉर्मेशन
फॉर द स्पेसिफिक थिंग्स इन स्कीम्स पॉलिसी में क्या क्या चीजें स्पेसिफिक आई हैं उन चीजों पे फोकस करना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पार्ट के लिए। जबकि जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप कंसेप्चुअल चीजों पे भी ध्यान दोगे, या फिर क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, या फिर क्या हम इससे अचीव कर पाएंगे, या फिर क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे भी आप यू कैन डू, उससे भी आपका काम चल जाता है। बट फॉर प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। Okay, so how many questions did you attempt in prelims, and what is your score in prelims for the benefit of the students? Yes sir. Sir, prelims में I did not have any hard and fast rule. मैं पहले से मन बना के नहीं गया था कि मैं इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। I was just having this simple strategy in my mind कि जैसा भी पेपर होगा I'll see the question paper, तो उसी हिसाब से I'll attempt the questions। फर्स्ट ये था मेरा स्ट्रेटजी ये थी कि मैं टू पार्ट्स में पेपर को अटेम्प्ट करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आई विल गो थ्रू दी होल पेपर। उसमें मैं देखूंगा कि जिन क्वेश्चंस में आई एम वेरी 100% श्योर आई विल अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, एंड जिसमें 2 ऑप्शंस हैं या फिर 3 ऑप्शंस हैं, अगर मैं एक ऑप्शन को रूल आउट कर देता हूं तो आई एम लेफ्ट विद 3 ऑप्शंस। अगर मैं 2 ऑप्शंस को रूल आउट कर देता हूं देन आई एम लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। तो उनको मैं आई विल सर्कल देम आउट, और फिर उनको जब मैं सेकंड उसमें जाऊंगा तो दूसरी बार में मैं उन क्वेश्चंस को जो कि जिनमें 2 ऑप्शंस हैं या फिर जिनमें 3 ऑप्शंस हैं उनको मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। जिनमें मैं चारों ही ऑप्शन में आई एम डाउटफुल तो उस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी थी सर जिसमें 100% फर्स्ट गो थ्रू में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो मेरी स्ट्रेटजी थी कि जिनमें आप 100% श्योर हो। दूसरी बार में जब आप जाते हो तो उन क्वेश्चंस पे आइए जिनमें आप दो ऑप्शंस को आप रूल आउट कर दिया, 2 ऑप्शन में आपको 50-50 है, और उसमें भी फिर आपको लगता है इफ यू स्टिल फील कि आपके अच्छे अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं जितना आप सोच रहे थे, आपको लगता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, देन यू गो फॉर दोज क्वेश्चंस जिसमें कि यू हैव रूल्ड आउट 1 ऑप्शन है, जिसमें कि 3 ऑप्शन में आपके पास आप यू हैव डाउट इन 3 ऑप्शंस। तब उसके बाद आप 3 ऑप्शंस पे जाइए। किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता कि आपको 4 ऑप्शंस में जहाँ पे आपको क्लूलेस हो आप, तो आप उसमें जहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में डाउट है वहां पे आपको वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहां पे probability of getting the answer right is only 25% and getting the wrong answer is 75%। तो आप वो क्वेश्चंस अगर ना करें तो आई थिंक आपके लिए अच्छा है। और सर मुझे लगता है कि एक नॉर्मल किसी भी पेपर या एग्जाम के लिए हर इंसान के लिए अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी लेवल। इफ योर एक्यूरेसी लेवल इज गुड तो आप अगर कम अटेम्प्ट भी करेंगे तो भी, मान लिया अगर आपने 75 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करे बट योर एक्यूरेसी लेवल इज गुड, तो आपको 60 या 65 क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएंगे। बट इफ योर एक्यूरेसी लेवल इज नॉट सो गुड तो आपने अगर 70 या 75 क्वेश्चंस ही ठीक करे, आप 70 या 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और उसमें से अगर आपके एक्यूरेसी लेवल 80% नहीं है या फिर 80% से भी कम है, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन जो ठीक होंगे वो उससे भी कम होंगे। इन दैट सिनारियो आपको देखना पड़ेगा कि आपको थोड़े से जो आपके अटेम्प्ट्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, सो दैट आपका अगर 70% एक्यूरेसी लेवल है और आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, सो दैट आपके जो ठीक होने वाले क्वेश्चंस है वो बढ़ जाए। तो सर ये चीजें देखनी पड़ती हैं। एवरी पर्सन हैज इट्स डिफरेंट स्ट्रेटजी। तो आप पहले मॉक टेस्ट वगैरह जो भी अटेम्प्ट करते हैं उसमें यू हैव टू सी कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए फेवर करती है, कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए सही काम करती है, उसी हिसाब से आप आगे पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। Did you identify any areas in prelims where you think that you have to score good marks? Okay, sir, I have segregated the prelims in 2 parts. Preparation of prelims in 2 parts. One thing is the basic syllabus that we do from our basic conventional syllabus, and second thing is current affairs. तो मैंने 2 पार्ट में सर डिवाइड करा था, जिसमें कि जो बेसिक सिलेबस था उसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और बाकी जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। तो उनके लिए आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। यू हैव योर स्टैंडर्ड बुक्स, यू हैव डिफाइंड सिलेबस, आप उनको बार बार रिवाइज करिए। अगर आप बना सकते हैं तो उनके क्रिस्प से नोट्स बना लीजिए ताकि एट द एंड आप थोड़े समय में ही उनको बहुत क्विकली उनको रिवाइज कर सकें। करंट अफेयर्स पार्ट्स के लिए सर आई हैव डन इज कि मैंने करंट अफेयर्स में उन चीजों को जो कि फैक्चुअल पोर्शन है, जो कि जैसे कि कोई स्कीम आ गई या पॉलिसी आ गई जिसमें कि कुछ चीजें फैक्चुअल हैं, कि मान के चलिए कि अटल पेंशन योजना एक बार हमारा क्वेश्चन आया था, तो उसमें किस एज ग्रुप के लोग उसमें एलिजिबल होंगे, उनकी इनकम लेवल क्या होगी, उनको कितने साल तक मिलेगी, तो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं
उनके आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि वो चीजें अगर रिवाइज हो जाएं तो आपके मन में वो आप उन याद रहती हैं, पेपर में आप उनको रिमाइंड कर पाते हो। और दूसरी चीज सर, जो करंट अफेयर्स में बेसिकली अगर आप सिलेबस से जोड़ के चलेंगे तो इजी हो जाता है। लाइक अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स आए तो आप उसको टॉपिक से जोड़ सकते हैं, कि जैसे आप बेसिक सिलेबस को जब रिवाइज करते हैं। This is very good suggestion. Yes. हाँ, तो अभी करंट में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या चल रहा है, जैसे कि सर हम पॉलिटी में अगर हम प्रेसिडेंट इलेक्शन या फिर इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन और ये चीजें पढ़ते हैं, तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन हुए होंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आए होंगे, या कुछ गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लेके आई है, कोई एक्ट लेके आई है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स उसी टाइम पे आए थे। तो जब आप इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो साथ में आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी देख लीजिए कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, और साथ में अब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये चीजें हम लेके आए हैं जो कि चेंजेस आ गए हैं। तो सर जो भी चेंजेस करंट अफेयर्स अगर आप कन्वेंशन सिलेबस के साथ उसको अटैच कर देंगे, उसको एसोसिएट कर देंगे, तो वो चीजें थोड़ी सी इजी भी हो जाती हैं अगर आप उसको एसोसिएट करके करते हैं। मतलब करंट अफेयर्स को अगर स्टैंड अलोन तरीके से रटने की बजाय अगर आप उन चीजों को समझेंगे और उनको एसोसिएट करके चलेंगे, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू हैंडल द करंट अफेयर्स। It's a very good suggestion. Yeah, since you're from science background, right? How did you prepare for things like history or economy or politics, which you might not have studied in your graduation? Sir, for these subjects, my strategy was very simple. मैंने मन में बनाया था कि जो चीजें हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके मन में सर एक फिगर होती है पहले से ही। जैसे कि हिस्ट्री के लिए मेरे मन में फिगर थी कि दैट हिस्ट्री इज लाइक ए स्टोरी। सो जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, द फर्स्ट फीलिंग दैट यू गेट इज कि एक स्टोरी आपके दिमाग, जैसे कि आप एनसीईआरटी जब कोई भी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट कोई भी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करता है, तो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो सर ये एक स्टोरी की तरह चलती है। तो हिस्ट्री में आपके मन में एक फीलिंग आती है दैट इट्स ए स्टोरी, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद द स्टोरी कि कब you should feel you should have that interesting, you should make it interesting. मेक इट इंटरेस्टिंग। तो उसमें सर अगर प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं तो उस स्टोरी में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स होंगे। तो वो ईयर्स, वो एस्पेक्ट और वो इवेंट्स जो थी वो आप क्लियर होके चलिए, या उनको लिख लीजिए, या फिर उनको बार बार रिवाइज करते रहिए फॉर प्रीलिम्स पार्ट। जब आप मेंस की बात करते हैं तो आप इसी स्टोरी की आपका मैक्रो व्यू देखना है कि उस स्टोरी में मेन रीजंस क्या थे और उससे उसका मेन इम्पैक्ट क्या हुआ। ये हिस्ट्री की बात है सर। जैसे ही जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहां पे कंसेप्चुअल चीजें आ जाती हैं, तो वहां पे कंसेप्ट समझने जरूरी है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर हर सब्जेक्ट के लिए जो कि सब्जेक्ट मेरे बैकग्राउंड से डिफरेंट थे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, उसमें मैंने इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई कि जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, द फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट। तो वो कंसेप्ट मुझे समझने हैं, वो मुझे कहीं या फिर कहीं से भी मुझे समझ में आए, तो वो मुझे वहां से वो चीजें समझनी है। जबकि जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मुझे मेरे मन में था कि आई हैव टू रीड द हिस्ट्री लाइक ए स्टोरी। तो वो सर वो चीजें जब आप इस तरीके से बना के करते हो, तो जो चीजें आपके आउट ऑफ बैकग्राउंड से या फिर आउट ऑफ सिलेबस से भी होती हैं, तो आप उनको अच्छे से इजिली कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं और इजिली ग्रेस्प भी कर पाते हैं। Yeah, this is very, very good suggestion. Read it like a story, then you will always remember the things. Yes, sir. Right. So, proceeding further, this is again from the student's point of view. How many times you have given your prelims, and how many times you have cleared? Sir, I have given prelims for 4 times. Out of those, the first 2 attempts I couldn't clear prelims. In third attempt, I cleared prelims, then I cleared mains, and I cleared interview. So I got 260 rank. Then in fourth attempt, I cleared all 3, and then I got this first rank. Yeah. The immediate question is, how did you keep up your morale very high, motivation? Sir, I think हर इंसान के लिए जो मोटिवेशन या मोरल होता है वो उसका एक पर्सनल एस्पेक्ट है, बिकॉज नोबडी कैन मोटिवेट यू, नोबडी कैन बूस्ट योर मोरल अगर आप अंदर से ही उस चीज के लिए रेडी नहीं हो। बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू गेट योरसेल्फ रेडी फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट कोई भी जो भी आप मिशन, उस मिशन के लिए जिस पे आप जाना चाहते हो, उसके लिए आपको खुद अंदर से रेडी होना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट जो उस जर्नी में आपके साथ लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके साथ एसोसिएट होते हैं,
अगर वो अच्छे हैं, आपको वो मोरल बूस्ट करते हैं, आपको अच्छी बातें बताते हैं, पॉजिटिव चीजें देते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो सर आपकी जर्नी इजी हो जाती है। अदरवाइज ये यही चीज अगर आप उनको वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है आपके टीचर्स, फैमिली, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की तरफ से, तो यही जर्नी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। और सर मुझे लगता है कि उस एस्पेक्ट में आई वॉज लकी कि जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, रिलेटिव्स थे, या मेरे जो टीचर्स मेंटर्स भी रहे सर, उनकी तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। और उनकी तरफ से हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स ही मुझे मिली, जिसकी वजह से मैं अपने आप को इस पूरे जर्नी में मोटिवेटेड रख पाया। दूसरी चीज सर, जो अंदर से मैं जो मोटिवेशन की बात कर रहा था, दैट थिंग इज कि आप कहीं ना कहीं आप अपने अंदर से भी इस बात के लिए यू आर वेरी क्लियर कि आप व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। और उस चीज के लिए अगर आपके मन में क्लैरिटी है, तो वो एक सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर होता है सर। वो आपको हमेशा, आपको ऊपर उठने के लिए, आपको राइज अप करने के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहता है। तो दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डोंट हैव क्लैरिटी इन योर माइंड व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, अगर आप किसी और के कहने पे कर रहे हो, भी किसी आपके फ्रेंड्स ने बोल दिया कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन तैयारी कर रहा हूँ, तो तुम भी कर लो। अगर आप सिर्फ इसी फैक्टर की वजह से तैयारी कर रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद आप लूज कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर वो मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है जो आपको हमेशा पुशअप करता है इंप्रूव करने के लिए, फिर आगे बढ़ने के लिए। तो सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ फिर बाकी लोगों का सपोर्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट। After 2 attempts, did you ever lose confidence in yourself? सर ये सब मुझे लगता है कि किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में ये फीलिंग्स आती हैं, चाहे वो फर्स्ट रैंक हो, चाहे वो लास्ट रैंक हो, या फिर इसका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में कभी ना कभी ये फीलिंग्स आती हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लूज भी होता है, आप डिमोटिवेट भी होते हो, और आपका मोटिवेशन लेवल भी नीचे जाता है। नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। यू स्टार्ट फीलिंग कि आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज शायद या तो मेरे अंदर वो चीज नहीं है विच दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स, या फिर मैं वो चीजें उस हिसाब से नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर नहीं पढ़ पा रहा हूँ जिस हिसाब से मुझे पढ़नी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं जो कि आपको नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं कि मैं ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाऊंगा। सिमिलरली सर मेरे 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 लिए भी, जब मैंने 2 बार फर्स्ट अपने पहले 2 अटेम्प्ट्स दिए जिसमें प्रीलिम्स आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, चाहे कोई भी फैक्टर रहा हो, सो उससे भी सर मेरे मन में भी ये डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स आए थे कि मैं शायद इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और उसका सर जो मुझे लगा था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, तो मुझे लगता था कि शायद मैं उस लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ दी, या फिर मेरी उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं है जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए चाहिए। और बिकॉज ऑफ मैं फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से सर मैं अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकता था, तो उसके साथ ही मुझे तैयारी करनी थी। तो एक बार के लिए मुझे लगा कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता और जॉब के साथ तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वहां पे सर मुझे लगा था, थोड़ा सा डिमोटिवेशन मेरे मन में आया था, नेगेटिव फीलिंग्स आई थी। बट सर वो थोड़ी टाइम के लिए रहता है, बिकॉज दैट जैसे मैंने आई वाज सेइंग कि अगर आपके अंदर वो क्लैरिटी है दैट व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो वो आपको फिर पुशअप मतलब राइज अप करने के लिए पुश करती है। वो आपको पुशअप करती है, आप दोबारा से उस चीज के लिए फिर से रेडी होते हो, फिर से तैयारी करते हो। और साथ में जो आपका सराउंडिंग होता है, आपके दोस्त होते हैं, आपकी फैमिली होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं और फिर से तैयारी को करते हो। तो सर वो फिर अच्छा निकल जाता है। That is very good. Internal motivation is very important, and Yes. you must have confidence in yourself. हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. That kind of confidence should be there in you. Yes, sir. Right? Now comes to the next question here. As you have mentioned, you have been working all through your preparation. Yes, sir. And morning 10 to morning 9 to 6 working will be there. Yes. How do you manage your time? So because this is I got I got so many questions because most of the students are working also, yes, sir. and they wanted to know how is it possible for people to clear this examination, that to become a topper while working, Yes, sir. right? Yes, And it's just like a dream for them. Yes, sir. I just even they wanted to know very much from you. Yes, right? sir. So this is the question that I get from lot of people, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मुझसे यही पूछते हैं कि जॉब के साथ साथ मतलब हाउ डिड यू प्रिपेयर, और उसके साथ साथ प्रिपरेशन तो इज वन पार्ट, हाउ डिड यू गेट सिलेक्टेड, एंड देन सिलेक्शन इज वन पार्ट, हाउ डिड यू गेट फर्स्ट रैंक। Exactly. तो ये सब जॉब के साथ हाउ डिड यू मैनेज। तो सर इसका जो मेन चीज मैं आप बताता हूँ इसमें
how what differently what I did. So सबसे पहले सर the first thing is time management is very important. और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स. देन आई रियलाइज कि कुछ ना कुछ कहीं पे कमी है जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि द मेन जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि मैं यूपीएससी का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाता. एंड दैट टू बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम. और वो लैक ऑफ टाइम, व्हाई देयर इज लैक ऑफ टाइम, बिकॉज एवरी पर्सन इज हैविंग ओनली 24 आवर्स. देन व्हाई स्पेशली आई एम हैविंग द लैक ऑफ टाइम. तो मुझे लगता है सर समवेयर कहीं ना कहीं मेरे टाइम मैनेजमेंट ही में ही कमी है. तो अगर मैं उसको सुधार लूंगा देन आई विल बी हैविंग द टाइम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन आल्सो. इट्स नथिंग सर, इट्स आई थिंक इट्स ओनली द प्रायोरिटी ऑफ थिंग्स दैट यू डिसाइड. आप चीजों के लिए अगर प्रायोरिटी डिसाइड करते हो तो जो चीजें आपकी प्रायोरिटी में हाई सबसे ऊपर होती हैं, हाई लिस्ट पे होती हैं, उनके लिए आप हमेशा टाइम निकाल ही लेते हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो. सर जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन को अपनी प्रायोरिटी बना लिया कि ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी, तो फिर मैंने मेरी जो सारी चीजें थी सर, जो मेरा पूरा डेली रूटीन था वो इस तरीके से बन गया कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा आई विल बी यूजिंग इट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. सर फॉर दैट सेक, जैसे कि एग्जाम, जैसे कि मैं 9 to 6 मेरी जॉब होती थी, तो जॉब में जाने मतलब ऑफिस जाने से पहले 1 से 1.5 घंटा जो सुबह का टाइम होता था सर, मैं वो निकाल लेता था. After that, sir, during my journey, because it takes around 1 to 1.5 hour on one side from my room to office. तो 1 से 1.5 घंटा सर हर रोज लगता था मेरे को. मेट्रो में ट्रेवल था, देन बस में कुछ ट्रेवल था. देन आई स्टार्टेड कि मैं ये टाइम मेरा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, व्हाई शुड नॉट आई स्टार्टेड यूजिंग दिस टाइम ऑल्सो. तो सर मैंने उस टाइम में फिर जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट किया, करंट अफेयर्स का कुछ चीजें पढ़नी स्टार्ट करी, या फिर सर फोन में मैं अपने नोट्स वगैरह बना लेता था, तो मैं फोन में से उस तरीके से उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करा. तो सर वो टाइम मैं यूटिलाइज कर लेता था. थर्ड थिंग इज जो लंच का टाइम होता था सर, वो उसमें 1 से 1.5 घंटे का हमारा लंच होता था. तो मैंने सर लंच करना बंद कर दिया, स्किप कर दिया, बिकॉज मैं सुबह और फिर 2 टाइम्स ही मील्स, 2 टाइम्स ही अपना जो है खाना लेता था सुबह, और फिर मैं ऑफिस से आके शाम को ही खाना लेता था. सर जो लंच का टाइम होता था 1 से 1.5 घंटा वो मुझे मिल जाता था मैं पढ़ने के लिए. तो मैं सर उसमें जो मेरा सिलेबस, मेरा एक फोकस रहता था कि इस वीक में मैं दिस पोर्शन को मैं कंप्लीट कर लूंगा या फिर इस पोर्शन को कंप्लीट कर लूंगा. तो सर मैं लंच में उस टाइम पे वो काम कर लेता था. एंड देन आफ्टर, जब सर ऑफिस से आने के बाद, आप खाना वाना खाने के बाद, तो मेरी कोशिश, क्योंकि सर उस टाइम पे आप टायर्ड भी हो जाते हो, पूरा दिन आप काम, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हो. तो उस टाइम पे सर मेरी कोशिश रहती है कि आप अगर रिवीजन कर लो जो पीछे कोई चीजें हैं, या फिर जिन जो जो ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा आपको एनर्जी या रिसोर्सेज नहीं लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हो. जैसे मैप की चीजें हैं, आपने उनको देख लिया, कुछ विजुअल्स हैं उन चीजों को देख लिया, या कुछ पिछला कुछ रिवीजन है वो चीजें आपने देख ली. तो सर मैं इस तरह के कुछ काम वो शाम को ऑफिस से आने के बाद करता था. तो सर इस तरीके से, और जो सैटरडे संडे था या फिर बीच में कोई अगर गेस्टेड अगर हॉलीडे ऑफिस की छुट्टी रहती थी, सो आई ट्राई टू यूटिलाइज दैट टू द मैक्सिमम, कि क्योंकि ये छुट्टी का दिन है तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसका करूं, ताकि जो मतलब बाकी जो मेरा टाइम वेस्ट होता है या फिर जो मैं टाइम बाकी यूटिलाइज नहीं कर पाता हूँ उसका मैं मेक ओवर यहाँ पे कर लूँ. तो फिर how many hours on an average you used to study? सर आवर्स में मैंने कभी, ओके सर आवर्स में मैंने कभी अपने आप को मेजर नहीं करा, बट आई थिंक डेली पे 6 से 8 घंटे मैं निकाल लेता था पूरा करके. That's very good. तो सर कई बार ऐसा भी होता था सर, जैसे कि आपको ऑफिस में अगर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, या फिर ऑफिस में आपको असाइनमेंट, जब आपको थोड़ा किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट पे काम करते करते ज्यादा लेट हो जाते हो, तो सर किसी दिन कम समय भी निकाल पाते थे, मैं निकाल पाता था यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए. तो सर मतलब ऐसा फिक्स नहीं था. कई बार आप, कई कुछ दिन ऐसे भी होते थे जिस दिन मैं बिल्कुल भी यूपीएससी के लिए कोई भी चीज नहीं पढ़ पाता था. तो उस टाइम पे मैं सर बेसिकली क्या करता था कि एटलीस्ट न्यूज़पेपर या फिर ये चीजें ही देख लेता था, जो कि यूपीएससी में एटलीस्ट कि बिल्कुल अगर आप कुछ नहीं देख पाए हो तो कुछ तो आप एटलीस्ट कर लो कि जो आपकी यूपीएससी में हेल्प करेगा. कि वो सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, दैट आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप ये काम करना चाहते हो. जब आप उसको अपना गोल डिसाइड कर लेते हो कि मुझे, हाँ ये मुझे काम करना है, उसके बाद आपको सर चीजें इजी हो जाती हैं, क्योंकि आपकी माइंड में क्लैरिटी, यू हैव द क्लैरिटी कि आपको क्या करना है.
और उस क्लैरिटी के लिए फिर आपको जब भी समय लगता है, जब भी कोई भी चीज, जब भी आप फ्री होते हो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो यू आर इन नो डाउट कि अब मैं फ्री हूं तो व्हाट शुड आई डू, ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर फ्री, यू हैव वेरी क्लैरिटी, वेरी क्लियर इन योर माइंड कि अगर आप फ्री हो तो आपको ये काम करना है। सो सर कहीं ना कहीं उस चीज ने मुझे हेल्प करा। तो जब भी मुझे समय लगा तो मैं उस हिसाब से उस समय को, चाहे मुझे 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा भी मिलता है, तो उस चीज को मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, ये मेरे साथ बेसिकली मेरे अंदर या मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। Yeah, that's a very good thing. Yeah, another major query among the students is that should they opt for group studies or individual studies? सर मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं ग्रुप स्टडी बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, मैं वर्किंग था, तो मुझे जो लगता है सर, ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, उसके भी हर एक चीज के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। बट शायद ग्रुप स्टडी सर 2 या 3 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर उससे ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं जो जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं उस टॉपिक से हम भटक जाते हैं। वी गेट अवे फ्रॉम दैट टॉपिक, और हम किसी और टॉपिक पे या किसी और चीज पे चले जाते हैं। कई बार हम पॉलिटिकल हो जाते हैं किसी चीजों को लेके, अपने व्यूज को लेके, जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन में के लिए बिल्कुल यूजलेस है। तो क्योंकि अगर 2 या 3 लोगों से ज्यादा लोग होंगे तो सबके अपने व्यूज एंड ओपिनियंस होते हैं, और यूपीएससी प्रिपरेशन ही यही है कि दैट यू हैव टू गिव योर व्यूज एंड योर ओपिनियंस। बट जब हम उन्हीं ओपिनियंस को या उन्हीं व्यूज को दूसरे के साथ बात करते हैं या डिस्कस करते हैं, समटाइम व्हाट हैपेंस कि हमारे जो व्यूज या ओपिनियंस हैं डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल, फ्रॉम अदर पीपल, और सर उसमें एक हम बिना बात उस चीज पे अगर हम ज्यादा बहस करते हैं या फिर उस पर डिबेट करते हैं तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, और हमारे जो ओपिनियंस हैं वो भी कहीं ना कहीं सर हमें लगता है कि नेगेटिव एक फीलिंग आती है कि शायद हम गलत हैं या फिर सामने वाला सही था। तो बेटर है कि आप 2 या 3 जो अच्छे आपके आपके फ्रेंड्स हैं जो कि इसी एक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, या फिर उनका भी माइंडसेट अगर आपसे मैच करता है, तो आप उनके साथ बैठिए, किसी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे, और सर ये भी मुझे लगता है कि ग्रुप डिस्कशन शुड बी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। आई थिंक यू शुड नॉट डू द ग्रुप डिस्कशन की चलो आओ आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं। जब जिस टाइम पे आपको लगता है कि आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो, जैसे कि आप पूरा दिन पढ़ लिए हो या फिर आप यू आर फीलिंग टायर्ड, देन यू कैन सिट विद योर फ्रेंड्स, आप उनके साथ किसी टॉपिक पे यू कैन डिस्कस कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आता है, यू कैन डिस्कस दोस कंसेप्ट। जैसे सर इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में ऐसी चीजें हैं जो कि कंसेप्चुअल हैं, साइंस एंड टेक में ऐसी चीजें हैं जो कि कंसेप्चुअल हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी चल रहा है, ब्लॉकचेन इज देयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज देयर। तो ये चीजें कैसे काम करती हैं, इनके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, तो ऐसी चीजें वो आप ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस कर सकते हैं, जो कि उस बैकग्राउंड से अगर कोई है तो वो आपको अच्छे से समझा सकता है। सिमिलरली सर जैसे कोविड चल रहा है, सो वायरस इज देयर, सो हाउ द कोविड वायरस वर्क्स, हाउ द म्यूटेशन हैपेंस, और इसमें अभी जो डेल्टा, जो डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं वो वो कैसे डेवलप हो रहे हैं। सिमिलरली हाउ वैक्सीन वर्क्स, उसका मेन उसके पीछे क्या कंसेप्ट होता है, तो आरएनए क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें सर अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, अगर आपका फ्रेंड है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है ये सारी चीजें इजीली अंडरस्टैंड करने में। अदरवाइज आपको इसके लिए नेट पे या बाकी चीजों से पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। सिमिलरली अगर कोई साइंस का कंसेप्ट है, वो आप इजीली, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से, तो वो आपको इजीली समझा देगा। तो मुझे लगता है सर अगर आप इफ यू आर डूइंग ग्रुप डिस्कशन, देन यू शुड यूज इट फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, जो आपको उसका फायदा मिले। अगर आप उसमें सिर्फ अपने व्यूज और अपने पॉइंट्स बता के आ जाते हो तो उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स नॉट ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जाके अपने व्यूज एयर करते हो कि मेरा ये ओपिनियन है, ये होना चाहिए। क्योंकि nobody is a better judge in this UPSC examination, only UPSC is the best judge to judge you। तो सर किसी के सामने व्यूज या ओपिनियन बताने से कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर कि आप अगर वहां से कुछ गेन करके आते हो, आपको फायदा होता है, कुछ चीजें समझ पाते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। अदरवाइज आप खुद अपने लेवल पे भी अगर तैयारी करेंगे, देन इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। Whatever I have seen of you in the last 4 or 5 years, you were very calm. You would come into the class, nobody would notice you. You would sit in the background, complete the class, and you leave the class. Yes sir. You were never, you were never vocal in the class. Nobody would even know your presence also. Yes sir. So sir मेरा उस मामले में उसमें भी मैं सर I was very clear. So because sir as I was discussing that my priority was UPSC. सो जब भी मैं क्लास में आता था तो मैं सर पीछे जाके चुपचाप आराम से बैठ जाता था, एंड सर माय ओनली फोकस एंड माय ओनली अटेंशन वाज व्हेन यू वर इन द क्लास एंड व्हाट यू आर डिस्कसिंग एंड व्हाट यू आर टेलिंग अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक।
उस पे आप क्या बता रहे हैं, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मुझे नोट डाउन कर लेनी चाहिए, और क्या चीजें हैं जो कि मुझे जो इम्प्रूव कर लेनी चाहिए अपनी आंसर राइटिंग में या फिर अपनी प्रिपरेशन में, वो चीजें मैं नोट डाउन कर लेता था सर। और वही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मुझे लगता था कि उसके अलावा अगर आप इफ यू आर इवन टॉकिंग लोगों के साथ, सबका अलग अलग सर बिहेवियर होता है, सबका अलग अलग नेचर होता है। मुझे लगता था उसके अलावा अगर मैं किसी और चीज में इंडल्ज होता हूँ, देन इट्स वेस्ट ऑफ माई टाइम। Waste of time. That is true. That is true. Yeah. Now coming back here, time only. You know, most of students will be writing mains prelims this year. They have less than 100 days time for prelims. Yes. So they wanted some kind of valuable tips from you for these 100 days. What should they do? Okay, sir. Sir, for prelims, there are 2-3 things that I would say. First thing is revision is must, sir. Because prelims में आप मोस्टली क्या होता है कि देयर विल बी ओनली 30 to 40 क्वेश्चंस विल बी देयर, जहाँ पे यू विल बी 100% श्योर कि हाँ मुझे इसका आंसर पता है। अदरवाइज 50 to 60% ऑफ क्वेश्चंस में यू विल बी इन डाउट कि 2 ऑप्शंस हैं या 3 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको वहां पे गैस वर्क काम करना पड़ता है। तो इसलिए रिवीजन मस्ट है, क्योंकि अगर आप बार बार चीजों को रिवाइज करते हो तो आपके दिमाग में चीजें याद रहती हैं, और अगर आपके दिमाग में चीजें अगर याद रहेंगी तो आपके उतना ही कम आपको चीजों को लेकर डाउट रहेगा। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई स्कीम है जिसमें कि स्कीम में यही पूछ लिया गया कि इसमें जैसे कि लास्ट टाइम भी आया था कि when you wrote, then there were so many government schemes that were asked in the prelims. Yes, sir. मान लीजिए कि किसी स्कीम में ये पूछा गया कि किस एज ग्रुप, इस एज ग्रुप के लोग इस स्कीम में होंगे, उनका इनकम लेवल इतने से कम होगा, इतने से कम होगा। तो सर वहां पे डाउट आता है कि आपको सारे ही ऑप्शन सही लगते हैं, क्योंकि आपको वो एज ग्रुप और वो चीजें याद नहीं रहती, आपको वो भी सही लगता है और वो भी सही लगता है। तो अगर आपने उसका 2-3 बार अगर उन चीजों को रिवाइज करा होता है तो वो जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपके दिमाग में रहती हैं। तो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे वो फैक्चुअल चीजें रिमाइंड आप अच्छे से कर पाओगे, और जितना आप अच्छे से उन चीजों को रिमाइंड कर पाओगे तो वो डाउट्स खत्म हो जाते हैं। सर यू आर वेरी क्लियर इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, तो आपको हेल्प करता है प्रीलिम्स में। Yeah, let us come to the mains part, right? So you got the top marks in all papers of general studies last year and public administration also. Let's say also, what is the secret of success? Sir, the secret of success is that you work hard and you prepare with a very clear mind and very clear strategy in your mind. मुझे लगता है सर जब आप उन चीजों के लिए पहली बात सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि इस एग्जाम की नीड क्या है, वो आपको समझने की जरूरत है कि इस एग्जाम का ये पैटर्न है। पहले प्रीलिम्स होगा, उसमें एमसीक्यूज आएंगे, तो यू नीड टू डेवलप दी टेम्परामेंट फॉर एमसीक्यूज। सेकेंड थिंग, इस एग्जाम को प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस होगा, जिसमें कि सिर्फ आपको 3 महीने मिलेंगे। तो अगर 3 महीने मिलेंगे तो उसमें आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, तो इसलिए आपको ऑप्शनल और बाकी पेपर्स को पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। फिर आप अगर जब उस 3 महीने में रिवाइज करते हो तो उसमें आपको करंट अफेयर्स के ऊपर भी काफी फोकस करना है। तो उस टाइम पे आपको अगर कहीं से मार्केट से या कहीं से भी अगर आपके पास या आपके खुद के नोट्स हैं जिसमें भी आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बना रखे हैं, तो वो रेडी होने चाहिए, रेडली अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वो उन चीजों को फटाफट उन चीजों को कवर अप कर सको। थर्डली सर, उस टाइम पे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आप कंटेंट जो है कहीं ना कहीं मिस कर जाते हो। तो आपको पहले थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, उस टाइम पे आप स्पीड अप कर सकते हो। और फोर्थ जो चीजें हैं सर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम में ही एग्जीक्यूट करनी होती है, जैसे कि स्पीड। जैसे कि इन चीजों को देखना कि आप टाइम में अपने जो है पेपर को कंप्लीट कर पाते हो। तो उसके लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी जरूरी है, ताकि आप विद इन टाइम उस पेपर को एक बार पहले से अगर आप करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो यू विल बी रेडी कि हाँ मुझे एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लिखने में प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर मेरा पेपर छूट जाता है, या फिर मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कैसा है, कंक्लूजन कैसा है, बॉडी कैसी है। उन चीजों को अगर आप एक बार पहले करके देख लेंगे, जो कि आप टेस्ट सीरीज से उसको अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, तो वो उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सर जब इंटरव्यू आता है तो आपको वो देखना है कि इंटरव्यू आपसे क्या डिमांड करता है, और इंटरव्यू के लिए फिर आपको क्या चीजें प्रिपरेशन करने की जरूरत है। सर मुझे लगता है कि किसी भी चीज के लिए, सक्सेस के लिए, जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाते हो, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, या फिर और किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो, सक्सेस के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए एक मेन चीज क्या
क्या किस चीज की आपको जरूरत है, उसका पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये चीज बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम सिर्फ इसलिए तैयारी करना स्टार्ट करते थे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी की तैयारी अगर हम बिना विदाउट एनी स्ट्रेटजी तैयारी करेंगे, विदाउट एनी प्लान के तैयारी करेंगे, तो सर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो यू शुड हैव ए वेरी क्लियर स्ट्रेटजी एंड प्लान इन योर माइंड कि अगर नेक्स्ट ईयर मेरे को एग्जाम देना है, तो नेक्स्ट ईयर मुझे प्रीलिम्स के लिए ये चीजें पढ़नी है, प्रीलिम्स को इस तरीके से करना है, क्योंकि प्रीलिम्स का पैटर्न एमसीक्यू टाइप है। सिमिलरली मेंस को इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मेंस का टाइप जो जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव टाइप है, उसमें मुझे पेपर्स जाके लिखने पड़ेंगे। तो सुबह शाम एग्जाम होंगे, तो उस तरीके से मुझे अपने आप को उस तरीके से सर रेडी भी करना है, उसी तरीके से मुझे अपनी स्ट्रेटजी भी तैयार करनी है, और फिर उस पूरी स्ट्रेटजी को, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जितनी आपको मेहनत की जरूरत है वो फिर आप मेहनत करिए। तो फिर सर जब हम वो सारी चीजें कंप्लीट होती हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी मिलता है। You are from science background. How did you develop those writing skills? ओके सर जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो जब मैं इससे पहले मैंने एसएससी का एग्जाम दिया था। सो एसएससी इज फॉर, एसएससी में मेनली एमसीक्यूज टाइप के पेपर्स आते हैं, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश और जीएस का जो पोर्शन आता है सर, दैट इज इवन इन एमसीक्यू टाइप, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं आता है सर। जब मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करा, द फर्स्ट चैलेंज फॉर मी वाज कि जब सब्जेक्टिव मेंस पेपर लिखना होगा, देन हाउ वुड आई राइट, क्योंकि मेरी जो सब्जेक्टिव लिखने की उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, और क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से भी हूँ, तो सर कभी हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के या फिर एस्से उस लेवल पे कभी पहले लिखे नहीं होते हैं, तो मैं इन चीज़ों को कैसे मैनेज करूंगा। तो सर वो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप उन चीज़ों के लिए पहले से अगर अपने माइंड में क्लियर होते हो कि आपको ये चीज़ें चाहिए, दिस इज द थिंग दैट यू वांट, हाउ वुड यू अचीव दिस थिंग, कि आपको उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि मुझे सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरी लिखने की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो इस लिखने की प्रैक्टिस को मैं कैसे अच्छी करूं ताकि मैं पेपर में अच्छा लिख पाऊं। तो उसके लिए आपने स्ट्रेटजी बनाई। उसके बाद मैंने सोचा सर कि इस चीज़ों के लिए मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मुझे मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के से पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें 3 महीने में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके सीख नहीं सकते, सीखना आपको पहले ही पड़ेगा। उस टाइम पे आप रिवाइज कर सकते हो, आप चीज़ों को ब्रश अप कर सकते हो। तो सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए फिर मैं डेली आंसर राइटिंग करने लगा, जो कि जैसे कि किसी भी आप आजकल सर बहुत सारे वेबसाइट्स भी चलती हैं, बहुत सारे आपको हर एक रिसोर्सेज से आपको मिल जाता है, तो आप हर रोज जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सर सबसे मेन चीज है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू विल गेट, आप उनको उठाइए, उनमें से जो आपने जो सिलेबस या जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, उन टॉपिक्स को के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, वो क्वेश्चन उठाइए, उनको ट्राई टू राइट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। और जब आप हर रोज अगर लिखेंगे, तो यू विल फील कि जब आपने लिखना स्टार्ट करा तब में, एंड व्हेन 1 महीना हो गया, 2 महीना आपको अगर लिखते हुए हो गए, यू विल डेफिनेटली फील कि आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें इंप्रूवमेंट हुई है ऑटोमेटिकली। मतलब आपको किसी से सीखने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली यू विल फील कॉन्फिडेंस कि हाँ आपकी इम्प्रूव स्किल्स जो है, राइटिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हुई। उसके बाद सर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप दूसरों से भी सीख सकते हैं। जैसे आपने किसी और का आंसर देखा, या फिर आपके टीचर हैं या आपके मेंटर हैं, आप उनको अपना आंसर दिखा सकते हैं, वो आपको कुछ ना कोई सजेशन देंगे कि आप इसमें ये चीजें ऐड कर दीजिए, आपका इंट्रोडक्शन ऐसे कर लीजिए, कंक्लूजन पार्ट ऐसे कर लीजिए, बॉडी को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वो चीजें आप धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पूरे प्रोसेस में आप सीखते रहिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आते रहिए, और सर जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो सर उसमें भी आपकी मास्टरी हो ही जाती है धीरे धीरे। Yeah, this is where I suddenly remembered. This is what you also told me. I think last time when we met, when you attended our test in our class, in the first test, I think you told me that you got around out of 250 marks, around 55-60 marks, I think. Yes, sir. Right. And when you went to the final test, you were the top scorer. Yes, sir. Right. Sir, that is how radical transformation had taken place. You scored around more than 150 marks. Sir. Right? Sir, all credit goes to you, sir, because when I joined the test series with you, sir, तो उस टाइम पे जो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लिखने का और जो सब्जेक्टिव चीज़ों का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत कम था, और उस समय सर मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से लिखना चाहिए या फिर क्या उसका स्टाइल होता है लिखने का। तो जब फर्स्ट पेपर आई अटेम्प्टेड विद यू,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आई गॉट ओनली 53 मार्क्स आउट ऑफ 250, जिसमें से आउट ऑफ 19 क्वेश्चंस आई वाज ओनली एबल टू कंप्लीट द 12 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। बट उसमें भी जो मुझे मार्क्स मिले वो दैट वाज ओनली 53। एंड जब मैंने सर उसको एनालाइज करा तो फिर वही चीजें आई एनालाइज कि क्या क्या वीकनेस रही। फर्स्ट थिंग वाज कि मैंने पेपर कंप्लीट नहीं किया। सेकंड थिंग वाज कुछ चीजों पे जो लिखने का स्टाइल था उनको इम्प्रूव करना था। थर्ड थिंग वाज कंटेंट, जो मेरे पास उन चीजों के लिए कंटेंट नहीं था। तो सर जो जो एरियाज थे, वीकनेसेस थे, वो मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपने भी जो उसमें सजेशंस यू हैव मेंशन, वो सजेशंस पे मैंने काम किया एंड देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आती गई सर। And sir, by God grace and by sir your able guidance, See, you have worked hard. You deserve all the success. That is what I can definitely say with conviction. Thank you, right? Sir. Let us talk a little bit about public administration. We are coming to the end of our discussion. Let us talk about public administration. Yes, so, what have you done? Because last year also you scored more than 300 marks in public administration, right? Yes, sir. Right? Yes, sir. There is this misconception among the students that public administration is not scoring optional, UPSC is not giving marks. But twice you have got very good marks in public administration, both the times. Sir, in first attempt, when I was giving my first means, that's third attempt. My third attempt and my first means, I got 305 marks in public administration. Very good. That was my first experience with PubEd. And sir, second attempt, I got 293 marks. Yeah. That is also close to 300. Sir, what I think is every optional is a good optional. सर नो ऑप्शनल इज गुड इज बैड एंड नो ऑप्शनल इज वेरी गुड। सारे ऑप्शनल ही अच्छे हैं, सभी ऑप्शनल अच्छे हैं। इट्स ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि किसी भी ऑप्शनल में यू हैव टू बी अमंग द बेस्ट ऑफ दोज ऑप्शनल, बिकॉज अल्टीमेटली देयर इज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस डन बाय यूपीएससी। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स भी लेके चलते हो, सो इट डजंट गारंटी कि आपके हमेशा आप हाई स्कोर ही करोगे, क्योंकि सभी मैथमेटिक्स ऑप्शन लेने वाले जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं या जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, सबके 300 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं। उसी तरीके से सर अगर आप सोशियोलॉजी, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी सब्जेक्ट लोगे, सो देयर विल बी कैंडिडेट्स जिनके यू विल गेट दोज कैंडिडेट जिनके मार्क्स विल बी ओवर 300 और जिनके मार्क्स विल बी बिलो 100 ऑल्सो। सर हर ऑप्शनल में ज्यादा मार्क्स के एग्जाम्पल्स भी हैं और कम मार्क्स के एग्जाम्पल्स भी हैं। तो कोई भी ऑप्शनल बहुत अच्छा या कोई भी ऑप्शनल बहुत बुरा नहीं है। एवरी ऑप्शनल इज वेरी गुड। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू फोकस दैट व्हाट सूट्स यू। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो तैयारी है, आपकी जो आपका एक बैकग्राउंड है, आपका जो एक पढ़ने का एक नजरिया है, उसमें कौन सा ऑप्शनल आपको फिट बैठता है। तो वो चीजें सर समझनी जरूरी है। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है कि इट्स ए गुड सब्जेक्ट। अगर आप उसको अच्छे से समझते हो तो उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। द थिंग इज कि आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये ऑप्शनल ये आपसे क्या चाहता है और आप इस ऑप्शनल में अपने आप को कहाँ पर देखते हो। तो अगर वो चीज़ आप समझ लेते हो तो सर उसके बाद चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं। और मुझे लगता है सर, क्योंकि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में भी डाला है कि किसी भी ऑप्शनल के लिए वी रिक्वायर द लेवल ऑफ एटलीस्ट ए ग्रेजुएट पर्सन फॉर दैट ऑप्शनल and for the level of +2 person for the general studies. So जनरल स्टडीज के लिए अगर हम नॉर्मल कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेके चलते हैं, तो अगर बेसिक चीजें भी हमारी क्लियर हैं तो हम आई थिंक वी कैन मैनेज इन जनरल स्टडीज। बट फॉर ऑप्शनल यू नीड टू हैव ए बेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड हाउ दैट ऑप्शनल एंड हाउ दैट लेवल ऑफ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उन चीजों की, हाउ दैट यू विल बी यूजफुल, you will use those things and how those things will be useful in your preparation for UPSC. आप UPSC में उसके लिए कैसे अच्छे से कर सकते हो उन चीज़ों को। और दूसरी चीज़ कि वो आपकी सिविल सर्विसेज में आगे किस तरीके से हेल्प करेंगे। अगर वो क्लैरिटी आपके मन में है तो सर आप किसी भी ऑप्शन को अच्छे से कर सकते हो। And how did you prepare specifically for ethics and essay? Because that is what students keep on asking. Okay. सर एथिक्स के लिए जो मैं पहले भी बोलता हूँ, बिकॉज एथिक्स इज बेस्ड ऑन एथिकल क्वालिटीज। Exactly. यू आर एथिकल देन यू आर एथिकल सर, यू डोंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अगर आप मन से ही एथिकल हो तो सर उसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें फिर सर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप उन चीजों को मतलब आंसर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आपको बस इतना ही तैयार करना पड़ता है।
तो उसके लिए अगर आप एथिकल पर्सन हो तो जो आपके थॉट्स हैं सर वो ऑटोमेटिकली एथिकल ही होते हैं। और उसके लिए बस आपको फिर जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है वो ये करनी पड़ती है कि आप उन चीज़ों को, अपने थॉट्स को आंसर फॉर्म में यूपीएससी के लिए किस तरीके से आप अच्छे से लिख सकते हो ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। तो इसमें दो चीज़ें हैं एथिक्स के लिए सर। फर्स्ट थिंग इज जो बेसिक्स हमारा कन्वेंशनल सिलेबस है उसमें कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के लिए आई वुड एडवाइज कि दी एस्पिरेंट्स हैव देयर ओन डेफिनेशंस ऑफ दोज टर्म्स, उनको पहले से लिख लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए और विद एग्जांपल्स जो कि हमारे करंट अफेयर्स जो चलते हैं उनसे आप एग्जांपल्स के साथ उनको एसोसिएट कर लीजिए और वो बना के आप रख लीजिए, जो कि आप एग्जाम्स के टाइम पे उनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो वो टर्म्स आपको यू विल लर्न दोज टर्म्स, उनकी डेफिनेशंस। सेकंड पार्ट है सर केस स्टडीज। केस स्टडीज में जहाँ पे आपको इस तरह के जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं या फिर आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद यू, जहाँ पे आपको इस तरह की कंडीशंस दे दी जाएंगी या डायलेमास आपके सामने रख दिए जाएंगे कि आप ऐसी कंडीशन में हो कि आप क्या करोगे। सो इफ यू आर एथिकल पर्सन तो आपका जो माइंड चलता है या आपकी थॉट प्रोसेस चलती है वो इसी तरीके से चलती है जहाँ पे आप उन लोगों के साथ उसी तरीके से बिहेव करते हो। सर यहाँ पे भी मैं ये बोलना चाहूंगा जो जब मैं कहता हूँ कि इफ यू आर एथिकल देन यू आर एथिकल। So you can't be made an ethical person. तो सर जैसे कि मान के चलिए कोई पर्सन इज वेरी एम्पैथेटिक, तो जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे उसको लीगल वर्सेस एम्पैथी के बीच में कोई चीजें नहीं है तो सर वो इस तरीके से कोशिश करेगा कि वो लीगल भी बना रहे, साथ में उन लोगों की हेल्प भी कर पाए। लेकिन अगर आपका व्यू एम्पैथेटिक व्यू नहीं है तो आप कोशिश करोगे कि आप लीगली रॉन्ग ना हो, लेकिन आप अगर चाहे उसके लिए आपको एम्पैथी को सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। क्योंकि कुछ लोगों की सर जब हम तैयारी करते थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो इस तरीके के व्यूज आते थे जहाँ पे यू वुड नॉट डू एनीथिंग दैट इज लीगली रॉन्ग बिकॉज इट इज अगेंस्ट द लॉ, सो यू विल गिव द लॉ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। बट सेकेंडली सर कुछ ऐसे व्यूज भी आते थे जहाँ पे आप लोगों की बिकॉज आपके जस्टिफिकेशन होता था बिकॉज सिविल सर्वेंट्स आर फॉर द पब्लिक, अगर आप लोगों के लिए ही हेल्प नहीं कर पाओगे तो किसी भी लॉ का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे this is where I just wanted to ask a question, yes, which is again a little bit more, I would say complicated. Did you face in your, this service, whether it is in customs or IAS, yes, this conflict between ethics and legality, morality versus legality? Yes, sir. सर द थिंग इज दैट मोरालिटी वर्सेस लीगैलिटी का जब भी कोई कंसेप्ट आता है या फिर जब भी कोई डायलेमा आता है, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू फोकस इज दैट you, because you are a public servant and you have been given powers by virtue of some law. Yes, sir, because there is rule of law in India. We are a democratic country, so every person in our democratic setup is working according to some law. So चाहे वो प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर से लेके एक नीचे सबसे नीचे लेवल पे भी जो हमारा एक ब्यूरोक्रेट है या फिर पब्लिक सर्वेंट है, इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू सम लॉ एंड इज यूजिंग सम पावर्स बाय वर्च्यू ऑफ सम लॉ। तो सर हम जो पावर यूज करते हैं या कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर पावर यूज करते हैं दैट इज ओनली बाय वर्च्यू ऑफ सम लॉ, उसके हिसाब से आपको पावर्स मिलती हैं, आपको मैंडेट मिलता है। द फर्स्ट थिंग ये है सर कि आप उस लॉ से तो बाहर नहीं जा सकते, ये आपको इंश्योर करना पड़ता है। उस लॉ के अंदर रहते हुए आप किस तरीके से चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो ताकि उससे मैक्सिमम बेनिफिट लोगों का हो जाए। तो ये चीजें होती है सर। उसमें मोरालिटी वर्सेस लीगैलिटी में आपको ये देखना पड़ता है कि यू आर नॉट, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू आर लीगल, that you are not doing anything which is against the law, but because you are also a public servant तो उसकी by virtue of being a public servant आप बहुत सारा इन्फ्लुएंस कैरी करते हो, बहुत सारी रिस्पेक्ट कैरी करते हो। अब उस चीजों को यूज करके हाउ यू कैन हेल्प द पीपल। अगर आपका एम्पैथेटिक व्यू है, इफ यू आर मॉरल, तो आप उन चीजों को उसके बावजूद भी, बिकॉज सर मॉरल होने के लिए किसी पब्लिक सर्वेंट होने की जरूरत नहीं है, मॉरल पब्लिक सर्वेंट नहीं भी हो तब भी आप मॉरल हो सकते हो। तो सर अगर इफ यू आर ए पब्लिक सर्वेंट तो आपको वो हेल्प भी करता है कि आप लोगों को बोलोगे, किसी संस्था को बोलोगे, किसी सिविल सोसाइटी को बोलोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलोगे, यू कैन आस्क सम अदर सिविल सोसाइटी, सम अदर पीपल, सम अदर ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प दोज पीपल इफ यू कांट डू डायरेक्टली। तो सर वहां से भी आप करा सकते हो। द थिंग इज दैट यू शुड हैव दैट थॉट प्रोसेस, दैट यू शुड हैव दोज ओपिनियंस इन योर माइंड कि मुझे इनकी हेल्प करनी है, इन व्हाट वे कैन आई हेल्प। That's a very good point. Very good. I think, this is what you have to write exactly in your case studies also. Yes, sir. Right. That is very good.
So I think, Pradeep, we are reaching the end of our time. I don't know how this 1 hour has passed by. Just like that, it's not even. It's like as if we have started only 5 minutes back. I'm really happy that you have come on to this platform, and you have given valuable guidance to our students. Yes, sir. Right. I'm sure all of them would benefit immensely out of this this discussion. Yes, sir. Right. And I sincerely once again express my deepest gratitude and to you to come onto this platform, and also giving direction to our students. So nice of you, sir. Sir, जो भी एक्सपीरियंस जो इस प्लेटफॉर्म से मुझे सुन रहे हैं या सर को सुन रहे हैं, मेरा सर उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चीज यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, और आपने भी हर इंसान के मन में एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, हर इंसान के मन में कुछ सपना होता है, ड्रीम होता है, जिसको लेके वो चलता है और जिसके लिए वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है। जैसे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी भी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं किसी पोजीशन पे, किसी पावर पे, ताकि वो लोगों के लिए या फिर जो भी उनका गोल है उस चीज को वो अचीव कर सकें, उन लोगों के लिए हेल्प कर सकें, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें। सो द फर्स्ट थिंग सर, मैं उनके लिए मेरा यही एक मैसेज है कि आप पूरे अच्छे से उस चीज के लिए मेहनत करिए। अगर आपका वो ड्रीम, आप रियल में वो चीज उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आप उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना लीजिए। पूरी मेहनत से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अपना ड्रीम बिल्कुल अचीव कर लेंगे। एक दो सर छोटी मोटी टिप्स जो मैं देना चाहता हूँ अपनी एक्सपीरियंस के लिए, कि नेगेटिविटी को अपने से दूर रखिए। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, जैसे कि 100 डेज या उससे भी कुछ कम दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आप बस अपने मन में ये चीजें निकाल दीजिए कि मेरा होगा या नहीं होगा, उन चीजों को दूर रख दीजिए। फोकस कर लीजिए, प्लान करिए, स्ट्रेटजी बनाइए, और अपने हिसाब से उस हिसाब से अपना सिलेबस को उसमें डिवाइड कर लीजिए कि विद इन मंथली, फिर वीकली, और फिर डे वाइज आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे आज इतना सिलेबस करना है, या फिर वीकली मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, देन मंथली मुझे इतना कंप्लीट करना है। उस हिसाब से अगर आप बना के चलेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्रीलिम्स के लिए सर ज्यादा से ज्यादा आई वुड सजेस्ट कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, ताकि उनका एक एमसीक्यू टेम्परामेंट प्रीलिम्स के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे शुड डेवलप दैट एमसीक्यू टेम्परामेंट, जो कि प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करता है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। दे शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एज सून एज दे कैन। पहले आप बेसिक सिलेबस अपना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर आंसर राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। तो ये चीजें, कुछ चीजें हैं सर, इन पे ध्यान देंगे। और जो जनरलाइज जो चीजें हैं कि अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आसपास जो लोग हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके साथ टच में रहिए, वो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। अपने टीचर्स और अपने मेंटर से बात करते रहिए। थोड़े से चैलेंजिंग टाइम्स हैं कोविड की वजह से सर, रिसेंटली बहुत सारी चीजें हमने ऐसे फेस करी हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में अपने आप को आप मोटिवेट भी रखिए, सेफ भी रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। और लाइफ में अगर आप खुश रहेंगे तो सर नॉर्मली सर चीजें आपके हिसाब से फिर मोल्ड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो दैट इज माय मैसेज टू द एस्पिरेंट सर। एंड सो नाइस ऑफ यू सर कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपसे बात हुई, और आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फिर बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ बात हुई। तो मुझे लगता है सर इससे जिन भी लोगों का, जिनको भी हेल्प मिल सकती है, तो उनको उनके लिए मतलब मैं सर अगर दोबारा भी अगर आप कहेंगे, आई विल बी readily available sir. Thank you very much. And I would end our discussion with only one single last sentence. I don't know whether Shah Rukh Khan or Sachin Tendulkar are the role models for young people in the country. I really don't know, but you definitely are a role model for young people in the country. Thank you sir. Because of the kind of success you have achieved, coming from such a humble background, and most importantly, you remain humble after achieving so much of success also. This is the best part of your personality. Just keep it up. I'm sure you'll be more successful in your future. Thank you, sir. Thank you, sir. So nice, sir. Thank you, sir. Thank you.